आगे मैं आपको कहूँगा, मैं आज परमिट करूंगा आपको, मगर जो भी मेंबर किसी दूसरे को ऑथराइज देगा, कोई बात नहीं, आज रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स में आपको बताता हूँ। ये देवेंद्र कुमार मनियाल जी। सर, AQ नंबर 1309, मिनिस्टर इन चार्ज स्कूल एजुकेशन। AQ number 1309, School Education Department has taken a number of initiatives to bring the children to the school and to ensure 100% enrollment at primary level. Initiatives taken in this regard are as under: conduct of enrollment drives by Director School Education Kashmir. Enrollment drives are being conducted every year. Identification of out-of-school children through door-to-door survey and their mainstreaming through direct enrollment. Establishment of seasonal centers for the children of tribal migratory population to prevent learning disruption during the migratory period. Free uniforms and textbooks are being provided to around 8 lakh children. Providing of midday meal under PM Poshan to every child from pre-primary sections to class 8th. Pre-primary sections started in 15,550 government schools, and an increase in enrollment has been recorded at pre-primary level, which was 1.80 lakhs. 2023-2024 has increased to 1.85 lakhs in 2024 to 2025. Sir B, the school buildings and land rendered vacant due to merger of schools has been handed over to the concerned district administration for utilization by other departments. Sir, presently there is no proposal for upgradation of schools to their next higher level from primary to middle to high, and high to higher secondary, including the schools broader areas, as the school education department is focusing on creation of required infrastructure and providing stock to all schools, especially the upgraded ones. As and when there is any proposal for upgradation existing schools, the feasible schools of broader areas shall be examined for consideration. D. The 9 schools of border villages falling in Samba district have been proposed for upgradation in terms of infrastructure and other facilities under Vibrant Village Program Second, as detailed below. Such serial number Zone Samba Bangalore High School, Gagwal Middle School Chalari, Gagwal Middle School Chaura, Gagwal Middle School Mangachak, Ramgarh Middle School Dagbarmala, Ramgarh Middle School Nangi, Ramgarh Middle School Rangur Basti, Ramgarh Samba Primary School Baglar, Samba Girls Primary School Jarada. Directorate of Samagra scheme has informed that till date no funds have been received under the scheme. E. During the current financial year 2005-2006, a total number of schools in Ramgarh constituency have been approved under Samagra Shiksha for the creation of various infrastructure facilities involving a financial implication 68.34 lakhs. ऑनरेबल स्पीकर सर, इसका जो पार्ट 1 है, ए पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चूंकि मनियाल साहब आउट ऑफ स्टेशन है, किसी वजह से जाना पड़ा, तो उनके बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूं। तो पहले तो ये पार्ट 1 जो है, जिसमें ड्रॉप आउट का जो है बात करी है, और सरकार ने जवाब दिया है कि 100% बच्चे स्कूल में आएँ, एजुकेशन हासिल करें, तालीम हासिल करिए, उसके लिए इन्होंने अपने अलग अलग ये प्रपोजल दिए हैं। अगर हम बात करें कि प्राइमरी लेवल पे हमारा ड्रॉप आउट जो है लगभग
1.6% है। इसी तरीके से अगर हम अपर प्राइमरी लेवल की बात करें तो लगभग 3.2% है। इसी तरीके से हम सेकेंडरी 4, तो नेशनल एवरेज से हमारा जो ड्रॉप आउट है खासकर सेकेंडरी लेवल पे ये बहुत ज़्यादा है। और इसका एक मुख्य कारण ये है कि जब स्कूल में बच्चा जाएगा प्राइमरी, सारे लोग समृद्ध परिवार नहीं है, सभी लोग एफर्ट्स नहीं कर सकते हैं, तो पेरेंट्स के अंदर बात आना शुरू होती है कि जनाब इस बच्चे को पढ़ाएंगे, ग्रेजुएशन कराएंगे, 12वीं कराएंगे, उसके बाद करेंगे क्या। तो लिमिटेड स्कोप्स हैं हमारे नौकरियों के। जैसे अगर कंप्यूटराइज सिस्टम आया तो जिस बैंक में 20 लोग काम करते थे 2 से चला, अब AI का जमाना आया तो और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज कम होंगी। तो लोगों के अंदर ये, पेरेंट्स के अंदर ये भावना रहती है कि बच्चा करेगा क्या पढ़ के। तो इसमें हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है कि जिसमें हमने कहा कि स्किल्ड जो है स्टूडेंट, उनको स्किल लेवल पे हम तैयार करें, उनको स्किल बनाएं। तो उसके लिए हमने वोकेशनल टीचर्स को हम तैनात किया है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है, जो उसकी स्पीड है, जो उसका रफ्तार है, वो बड़ी धीमी है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से जानना चाहता हूं क्या, क्योंकि जब तक आपका ग्रेजुएट करता है स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट करता है, बाहर जाता है, अगर आप अपने शहर में जाएंगे, अपने टाउन में जाएंगे, जम्मू में जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे, तो आपके पास प्लम्बर की शॉर्टेज है, आपके पास इलेक्ट्रिशियन की शॉर्ट है, आपके पास ब्यूटी, तो ये कोर्सेज हमारे पास नहीं होते। ग्रेजुएशन के बाद भी बच्चा उसके पास स्किल कुछ होता नहीं है। तो मैं मंत्री साहब से जानना चाहता हूं कि इसके लिए स्पीड अप करने के लिए, ताकि इस साल हर स्कूल जो हायर सेकेंडरी लेवल स्कूल है उसमें वोकेशनल टीचर हम तैयार देके और उन स्टूडेंट्स को तैयार करें, जब वो पढ़ के निकलें तो कम से कम वो कुछ अपना काम कर पाए। थैंक यू वेरी मच। पूरी किताब पढ़ ली पर कुछ ऐसा। सर, जो ऑनरेबल मेंबर का कंसर्न है वो सही है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पिछले 1-1.5 साल में जितनी इम्प्रूवमेंट हुई हैं, मैंने ऑलरेडी अपने सवाल में बता दिया कि ड्रॉप आउट पहले बहुत थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन आज की डेट में इसमें कमी आई है, क्योंकि मुख्तलिफ स्कीम जो एजुकेशन डिपार्टमेंट चलाता है, चाहे वो स्कूल चलो स्कीम हो, चाहे वो मिड डे मील स्कीम हो, चाहे वो बच्चों के लिए लाडली बेटी स्कीम जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट चलाता है, इसी तरह कैंपेनिंग, अवेयरनेस जो कैंप लगे हुए हैं पिछले इन 1-1.5 वर्षों में डायरेक्टरेट लेवल पे, CO लेवल पे, ZDO लेवल पे, ताकि लोगों को कन्विंस करें कि वो बच्चों को स्कूल भेजें। हमारा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और पढ़ाई के बगैर कोई भी बच्चा ना रह सके, ये हमारी कोशिश है। लेकिन सर, मैं ऑनरेबल MLA को बताना चाहूँगी कि पिछले 1.5 साल से इसमें काफ़ी बेहतरी आई है। मैं नहीं कहूँगी कि 100% हमने अचीव किया है, लेकिन काफ़ी हद तक हम इसमें आगे बढ़ चुके हैं। और भी आगे जो करना होगा, जैसे आपने कहा है टीचर्स की कमी है, कहीं पे वैकेंसीज है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सीजनल टीचर्स हो, चाहे वो CRC के जरिए लगाना हो, चाहे वो प्रमोशंस के जरिए इन पोस्टों को फिलअप करने की बात हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट बोर्ड को पोस्ट रेफर करने की बात हो, ये हमारी कोशिश है। लेकिन मैं सर आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि सरकार की कोशिश है कि ड्रॉप आउट ना हो, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, कोई बच्चा तालीम के बगैर ना रहे। और हमने इस 1.5 साल में कोशिश की है और काफ़ी हद तक इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगी कि आगे भी हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो, कोई बच्चा एजुकेशन के बगैर ना रह सके। भाई दिलमीर साहब, हाँ सर आपने पहले ही 50 पूछे। सर एक्टिव नंबर 1090। हो गया, डिटेल में सवाल भी आया, डिटेल में जवाब भी आया, डिटेल में कोई बात नहीं, आगे देखेंगे, कोई बात नहीं। बस अब मैंने दूसरे को बुलाया, हाँ, मिनिस्टर इंचार्ज पब्लिक वर्क्स। Honorable Speaker, sir. Part A. The constituency-wise details of allocation made under city and town portals, district capex, etc. for the R&B sector during the financial year 2025-26, with the particular reference to Pulwama district are annexed at Annexure A. Part B. No project stands sanctioned under CRF in Rajpura constituency during financial year 2025-26. However, on the recommendations of the Honorable MLA, project proposal for widening upgradation of Lassipura Littar Sangam Road covering a length of 14 km at an estimated cost of rupees 98.71 crore has been received by the department and is presently under examination. Part C, construction of Kandipathri Shidak Shrine Road. The DPR for construction of the road length 15 km has been prepared at an estimated cost of rupees
48.26 crore. A major portion of the proposed alignment falls under forest area and therefore requires mandatory forest clearance prior to execution. Widening of the upgradations of Lassipura Little Sangam Road. The DPR for widening of the upgradation of the road 14 km has been prepared at an estimated cost of 98.71 crore under CRF. The existing carriageway width of about 5.5 meters is inadequate in view of the heavy traffic, particularly due to the presence of the industrial growth center Lassipura. The proposals are under consideration in the department and the department is ascertain the feasibility and availability of resources. सर, ऑनरेबल मिनिस्टर को भी पता है कि पिछले साल जो एलोकेशन हुई चाहे सीएनटी में या पार्ट होल्स में या नबार्ड में, सबसे कम साउथ में जो एलोकेशन हुई है वो राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हुई है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से ये कहना चाहता हूं कि अगर ये जो इस साल एलोकेशन करने जा रहे हैं सीएनटी में, पार्ट होल्स में या नबार्ड में, क्या एक तो एलोकेशन जो हक है राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी को वो मिलेगा और दूसरा जो पिछले साल जो नुकसान हुआ है क्या इसके लिए जो इजाफी रकम इस एलोकेशन इस साल किया जाएगा, क्योंकि पिछले साल नुकसान हुआ राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में, सबसे कम साउथ में मिला अगर है वो राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी मिलेगा, क्या वो नुकसान इस साल वो पूरा करेंगे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब? ऑनरेबल स्पीकर साहब, वैसे तो जितना मैंने इनको कोशिश की अकोमोडेट करने की और ऑनरेबल एमएलए साहब को पता भी है, चलो फिर भी अगर कोई इनको कमी रह गई है तो उसको अकोमोडेट करेंगे। और इस साल हमने सर बाकायदा जितने भी हाउस में ऑनरेबल एमएलएज हैं हमने उनको चिट्ठियां लिखी हैं और एक बराबर का हिस्सेदारी उनको दी है कि हमें सिटी एंड टाउन्स में 20 किलोमीटर की हमें आप लेंथ दे दीजिए और बराबरी का हिस्सा इस पर हम देंगे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत इनको कहीं पीछे सा रह गया है तो वो हम जरूर अकोमोडेट करेंगे। श्री दर्शन कुमार जी, दर्शन कुमार सर, AQ नंबर 842 मिनिस्टर इंचार्ज पावर। Sir, AQ number 842, Part A. As per the agreement of the year 1979 between the Jammu and Kashmir and Punjab government, 20% of the total power generated at the Thain Dam and Shahpur Kandi Barrage at Basbar, cost of generation will be available to J&K. Of late, power sale agreement was signed between PSPCL and JKPCL on 11/10/2019 for sale and purchase of power from the dam, now known as Ranjit Sagar Dam project. As on date, no power is injected into our system due to lack of transmission infrastructure. The provisional tariff payable to PSPCL is ₹3.50 per kilowatt hour. Part B. There is no such proposal under consideration of the government. Part C. Particulars. Total compensation amount 85 crores 48 lakhs 20,681. Amount released by Punjab government 71 crores 15 lakhs 96,361. Pending compensation amount 14 crores 32 lakhs 24,321. Interest accrued on amount released by RSD authorities and subsequently utilized by DC office Kathua for payment of land compensation during July 1999, rupees 5 crores 41 lakhs 73,000. Pending compensation amount rupees 8 crores 90 lakhs 51,320. Payment to be made as per various court orders 1 crore 10 lakhs 10,060. Pending interest as on 30th/9/2025 27 crores 2 lakhs 55,943. Total amount 37 crores 3 lakhs 17,323 rupees. Payment received from RSD during 2020, 21 crores 8 lakhs 58,646 rupees. Balance on account of compensation including interest as on 30th/9/2025, 15 crores 94 lakhs 58,677. Compensation disbursed 50 crores 51 lakhs 996 rupees. Reason for delay in full compensation. One of the major reasons for the delay in the release of complete compensation is the non-submission of requisite documents, details, PAN card, Aadhaar card, etc. DC Kathua has issued multiple public notices urging the landowners to furnish the required documents to enable the timely release of compensation to the rightful agreed rehabilitation and resettlement policy of both state governments. In addition, job to the oustees will be given by the government of Punjab
as per agreed R&R policy of both the governments. Yes. ऑनरेबल स्पीकर सर, बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी के साधनों और संसाधनों के ऊपर बनाई गई है। 600 मेगावाट का पंजाब गवर्नमेंट का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट है वो, लेकिन मुझे नहीं लगता किस कारण से 20% बिजली हमारे को उन्होंने फ्री देनी थी, उसके लिए आज तक भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो बन नहीं पाया। जैसा इन्होंने कहा है कि कोई भी ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार हो पाया है। उसके बाद सर उन्होंने जो रणधीर सागर डैम है, हमारे लोगों के साथ इतना बड़ा उन्होंने अन्याय किया है। गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, वहां खेती बाड़ी करके वो अपना गुजारा करते थे, आज तक उनका कंपनसेशन बाकी है। एज पर जो अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने पढ़ा है कि 16 करोड़ रुपया उनके हिसाब से कंपनसेशन बाकी है। बसोली के उन्होंने कहा था कि बसोली को हम फ्री बिजली देंगे, एज पर एग्रीमेंट उन्होंने कहा था कि बिजली फ्री देंगे, लेकिन आज तक बिजली फ्री नहीं मिली। 22 गांव जो प्रभावित हुए हैं, आज लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अपने कंपनसेशन के लिए। सबसे बड़ी बात, जो उन्होंने नौकरियां देनी थी 861 नौकरियां आज भी पेंडिंग हैं, वो नौकरियां नहीं दे रहे हैं आज भी। 861 नौकरियां आज भी, उन्होंने कहा था हर फैमिली को नौकरी देंगे, लेकिन नहीं दी है। और एज पर क्वालिफिकेशन देंगे। सर कितना बड़ा उन्होंने अन्याय किया है हमारे लोगों को। उन्होंने एज पर क्वालिफिकेशन एग्रीमेंट में कहा था कि एज पर क्वालिफिकेशन नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी कैसी दी उन्होंने? माली की नौकरी दे दी, कुक की नौकरी दे दी, मजदूर की नौकरी दे दी, ना उनकी कोई प्रमोशन है। और उसके बाद हमारे लोगों को इतना हरासमेंट कर रहे हैं। उनको उन्होंने कहा था कि जहां प्रोजेक्ट है वहीं हम उनको जॉब देंगे, वहीं पे उनको रखेंगे, लेकिन सर संगरूर, बटाला और पता नहीं कहां कहां उनको पंजाब में उन्होंने कोने कोने में फेंका हुआ है। और जो पढ़े लिखे हमारे पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं, उनसे वो क्लर्क का काम करवा रहे हैं, काम उनसे ले रहे हैं, क्लर्क का काम ले रहे हैं, अच्छी जो पढ़े लिखे नौजवानों के हिसाब से काम ले रहे हैं, लेकिन है वही कुक है, माली है और सवाल जी। इसके बाद सर, और 152 फैमिलियां उन्होंने जिनको नौकरी दे रखी है सर, वो नॉन ट्रेसेबल फैमिलियां हैं। ये R&R पॉलिसी भी थी, उन्होंने कहा था कि रेजिडेंशियल कॉलोनी बना के देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, उसके लिए भी कुछ नहीं हुआ। जो रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट का वो थी। उसके बाद सर reimbursement to collectorate as per agreement regarding the salary and other expenses users kept hold by the पंजाब गवर्नमेंट, वो भी कोई 9 करोड़ रुपए करीब हैं, वो भी उन्होंने होल्ड करके रखे हुए हैं। नौकरियां हमारी पेंडिंग है, कंपनसेशन हमारा पेंडिंग है। और सर लेकिन डीसी यहाँ जवाब आ रहा है कि लोग पैन कार्ड नहीं दे रहे, आधार कार्ड नहीं दे रहे, इसलिए उनको कंपनसेशन नहीं मिल रहा। आप बताओ, कोई पैसे लेने के लिए मेरे को अगर पैसा मिलना हो, मेरे से कोई आधार कार्ड पैन कार्ड मांगेगा, मैं नहीं दूंगा क्या? तो सर ये गलत जवाब है। तो इस पे सरकार को कड़ा एक संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि हमारे साधनों संसाधनों पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट, लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए। आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। सर ऑनरेबल एमएलए साहब की तरफ से जो सजेशन आया है कॉम्पनसेशन को लेके, उस पर हम जरूर गौर करेंगे। हमारा भी मकसद है कि पैसा लोगों तक पहुंच जाए, लेकिन ऐसा भी है जनाब कि बिना कागजी कार्रवाई पूरी किए हुए हम ये पैसा उनको दे नहीं सकते। और जैसे मैंने जवाब के दौरान कहा, बार बार हम डीसी के थ्रू उन फैमिलीज को याद दिलाते हैं कि मेहरबानी करके वो फॉर्मेलिटीज पूरी करें, ताकि पैसा हम उनको डिसबर्स करें। इसमें अगर ऑनरेबल एमएलए साहब भी हमारा हाथ बटाएं, तो जितनी जल्दी वो फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएंगी, उतनी जल्दी हम पैसा डिसबर्स करेंगे। जहां तक इन्होंने नौकरियों वगैरह के हवाले से बात की, मैंने खुद जवाब में इसको तस्लीम किया है कि पंजाब गवर्नमेंट को ये करना था, कुछ हद तक किया है। अब जैसे ऑनरेबल एमएलए साहब ने कहा है, जो नौकरियां दी हैं वो उस स्टेटस के नहीं है। अब पंजाब गवर्नमेंट के साथ ये टेकअप करके उनसे कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने हमारे साथ 1979 में अग्रीमेंट किया है, उस अग्रीमेंट को लेटर एंड स्पिरिट में वो इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। इसमें सर एक चीज और देखी जाए कि कोई हमारी पंजाब गवर्नमेंट के साथ में लीज हुई है, हमने कोई उनको सेल नहीं करी, लीज हुई है, लेकिन फिर भी बीच में कुछ ऑफिसरों के कारण उसकी इंक्वायरी की जाए। उन्होंने मोटेशनें की हैं, मोटेशनें किस बिहाफ पे उन्होंने मोटेशनें की हैं, उसका भी थोड़ा संज्ञान लिया जाए। सर ये सवाल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़ा एलैबोरेट जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन मैं भी अपनी मेमोरी को थोड़ा रिकोलेक्ट किया है। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, ये जो एमओयू साइन हुआ था बिटवीन टू गवर्नमेंट, और उस समय दो बड़ी शख्सियतों ने ये एमओयू साइन किया था। यहाँ पे उस समय स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी चीफ मिनिस्टर थे, और वहाँ पे प्रकाश सिंह बादल जी चीफ मिनिस्टर थे। और मुझे खुशी है कि जब हमारी दोबारा 2009 में ये गवर्नमेंट हुई, हमने इसको रीओपन किया, और अब वहाँ पे
ये फर्स्ट फेज तो उनका कंप्लीट हो गया, अब सेकंड फेज वहां पे जा रहा है। तो मेरी गुजारिश होगी कि जो उनकी एमओयू में टर्म्स एंड कंडीशन थी वो पंजाब सरकार ने फुलफिल नहीं की है, और उसको परस्यू भी किया था हमने 2013-14 में। और मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर साहब से मैंने उस समय खतो खताबत भी, वहां के चीफ मिनिस्टर उस समय तो प्रकाश सिंह बादल जी जिंदा थे, तो उसमें कुछ पेश रफ्त तो हुई थी। एक तो उन्होंने हमें 20% जो ओवरऑल पावर प्रोडक्शन है उसमें वर्ष बार पे हमें जो है 20% बिजली उन्होंने देनी थी, जो आज तक नहीं दी है, ये भी हमें क्लेम करना चाहिए। फिर 300 क्यूसेक पानी अब तो शाहपुर कंडी सेकंड आ रही है, लेकिन उस समय की कमिटमेंट है। फिर जो लोग डिस्प्लेस हो गए थे उनको प्रॉपरली रिहैबिलिटेट करना था, वो उन्होंने नहीं किया। और खुद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने माना है कि 800 से ज्यादा नौकरियां हमारी रहती हैं। तो मेरी ये गुजारिश होगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से कि आप दोबारा अपने गुड ऑप्शंस को यूज करें, जो हमसे भी हो पाएगा हम करेंगे। और अब तो सेकंड फेज भी हमारा आ रहा है शाहपुर कंडी का, तो ये जो पेंडिंग एमओयू में उनकी कमिटमेंट जो उन्होंने फुलफिल नहीं की, एक तो हमें ये क्लेम भी करना चाहिए कि 20% ओवरऑल पावर अगर 650 मेगावाट वहां वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका 20% कितना बनता है। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सीरियस होके हमें जो है वो कंसर्न अपना शो करके पंजाब गवर्नमेंट से टेकअप करना चाहिए। सर, ऑनरेबल एमएलए श्यामलाल शर्मा साहब सही कह रहे हैं, क्योंकि उस वक्त इन्होंने ही इसमें काफ़ी पेशरफ्त की थी। हमारी इससे पहली जो हुकूमत थी, इनका जो सुझाव आया है, मशवरा आया है, ज़रूर अपने लेवल पे मैं अपने काउंटर पार्ट चीफ मिनिस्टर, पंजाब चीफ मिनिस्टर के साथ टेकअप करके उन्हें इन चीज़ों के बारे में याद दिला दूंगा कि उनकी क्या कमिटमेंट है, क्योंकि ये इंडिविजुअल की कमिटमेंट नहीं है, ये सॉवरेन कमिटमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इससे मुकरने का कोई सवाल पैदा होता नहीं है। उनको हम याद दिला देंगे और उनको कन्विंस करेंगे कि उनको अपनी एग्रीमेंट जो है उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। सर जमशेद लोन जी, सर नहीं सर AQ नंबर 1491, वो उसी के बारे में पूछता है। सर AQ नंबर 1491। सर कैसे उठे, तो हमें धोखा दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कृष्ण गंगा गुरेज में बना, उन्होंने कहा नौकरियां देंगे ना बिजली देंगे। हाँ, मिनिस्टर इंचार्ज पब्लिक वर्क्स, आपने जवाब दिया। Honorable Speaker, sir, Part A, Machel area experiences heavy snowfall during winter months, which affects connectivity and poses difficulties for the residents. However, an institutional mechanism is in place to address essential requirements during winter, with advanced planning and necessary arrangements made to ensure availability of basic service, including healthcare and essential supplies. Part B, representations have been received from the local population regarding construction of a tunnel in the area, citing its strategic and connectivity importance. Part C, a tunnel to connect Machel sector to the hinterland at Judd Gully has been sanctioned under other than capital occasion. Had preparation of DPR has been proposed for inclusion in the annual works plan 2026-27. सर, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी तरफ से और मचल की पूरी आवाम की तरफ से, जनाब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का, जनाब डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का, चीफ सेक्रेटरी साहब का भी और कमिश्नर सेक्रेटरी R&B का भी। इनकी मेहनत से, इनकी काविशों से, जो कि कमिटमेंट भी थी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की वहाँ पे, तो इन्होंने ये मान लिया है इस टनल का। और DPR जो है रवां साल के लिए, जो है रवां साल में ही DPR के लिए प्रिपेयर करेंगे। सर, इसके साथ साथ मेरी गुजारिश रहेगी कि एक और जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ हमारे लिए, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी वाकिफ हैं इस एरिया से, लोलाब और बांडीपोरा टनल। तो उसमें सर दो चीज़ें हैं, एक तो कनेक्टिविटी का है, दूसरा जो कि इस वक्त लोलाब में हमारे यहाँ पे जो है पानी की सख्त किल्लत है। आपने देखा बार बार यहाँ पे इशू रेज किया मैंने पानी के हवाले से भी। इस टनल से हमारे दो पर्पस सॉल्व हो जाते हैं, एक तो कनेक्टिविटी, ऑल्टरनेट कनेक्टिविटी। चीफ मिनिस्टर साहब पूरा वाकिफ हैं इस इलाके से, इनकी भी कमिटमेंट है। लिहाजा मेरी गुजारिश होगी
ऑनरेबल पाइपलाइन में है, ऑलरेडी इस पे काम चल रहा है। जिस तरह मैंने कहा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी बड़े इसमें संजीदा है।